Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. In last video, we had started our chapter 5 sources of water. In that, we had seen that how much sources of water, that is ocean, rain, rivers, ponds, tube well, hand pump. Okay, so today we will start the topic evaporation. So let's start our topic. So children, evaporation. Do you know what is evaporation? Evaporation, that is changes of water to water vapor due to heating, is called evaporation. Water change to water vapor मीन्स जो पानी है, वाटर है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, वो भाप में चेंज हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. There are many factors that affect the process of evaporation. This is a process, okay? ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से इवेपोरेट हो जाएगा. कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको एवेपोरेट कराते हैं. सो लेट्स सी विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. फर्स्ट, water evaporates faster when the weather is windy. वेदर विंडी है, अगर हवा बह रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में वाटर इवेपोरेट होता है, फास्ट इवेपोरेट होता है. यू कैन सी फॉर दिस एग्जाम्पल हियर. टेक 2 saucers of same size. Okay, saucers like this of same size, you can take it, pour an equal amount of water in them, equal amount, okay, both in the saucer. Just take equal amount of water. Put one saucer under a fan. Here is under a fan like this, you can put it and turn the fan on करना है इसको. Do not put the other one under a fan. Second one, this will, don't put it under a fan. इसको फैन के नीचे नहीं रखना है. And put in place where there is no wind. So where you can put it, just in a room you can put it. And don't switch on your fan, okay. And this one, put it in the other room where you switch on the fan. एक जगह रखो जहाँ पर इसमें फ़ैन चलता हो, और दूसरे को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आप फ़ैन नहीं ऑन करोगे, ओके. पुट इट इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो विंड. यहाँ पर ऐसी जगह पे ही रखना है जहाँ पे कोई हवा भी नहीं बह रही है, फ़ैन भी नहीं ऑन करना है, ओके. टेक अ लुक एट द सॉसर आफ्टर एन आवर. व्हाट हैपन टू एन आवर? क्या होगा अब इसमें 1 घंटे बाद क्या होगा? दिस इज सॉसर अंडर द फैन एंड दिस इज सॉसर अवे फ्रॉम द फैन, ओके. वाटर इवेपोरेट फास्टर द व्हेन वेदर इज़ विंडी. यही अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना कि जहाँ पे विंडी होगा, वेदर अगर विंडी होगा, तो ये तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वेदर विंडी कहाँ होता है? बाहर होता है. बाहर हवा चल रही होती है तो वाटर बहुत फास्ट इवेपोरेट्स होता है. सो वी आर डूइंग दिस फॉर प्रैक्टिकली सीन दैट कि इसमें क्या हो रहा है, इसको हम अब लोग देख रहे हैं. फ़ैन चलाने से यहाँ पर वेदर विंडी हो गया है, मतलब इसके पास हवा अच्छी आ रही है, और यहाँ पर बिल्कुल भी विंड नहीं है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You observe that there is less water in the saucer placed under the fan. Here, less water. यहाँ पे पानी कम दिखेगा आपको. This means that more water has evaporated from the saucer placed under the fan. Okay, यहाँ पर जल्दी evaporate हुआ, and thus prove that water evaporate faster when the weather is windy. यहाँ पर ये जल्दी इसमें पानी कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सॉसर. यहाँ पे कोई विंड नहीं है, यहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो अगर आप चाहो तो इसको छोड़ करके देख सकते हो. काफ़ी टाइम तक छोड़ेंगे तब जा करके ये धीरे धीरे इसमें वाटर कम होगा, लेस होगा. बट हियर इट्स फास्टर बिकॉज ऑफ हियर इज़ विंड. सो दिस प्रूफ दैट कि water evaporates faster when the weather is windy. Second, water evaporates faster when the temperature is high. Take the same amount of water in 2 saucers of same size.
keep one saucer in the sun and the other in the shed. After an hour, you find that there is less water in the saucer that is in the sun. This shows that more water has evaporated from the saucer placed in the sun. Okay, children, here is another example. We can see two saucers, same amount of water you have to put it in, and one saucer you have to put in under the sunlight, and another one is in shed. Okay, so which evaporates faster? Which water evaporates faster? That is, this saucers of water evaporates faster because of here is high temperature. यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है ना, सन के नीचे है, जस्ट इस सन से डायरेक्ट इसका कांटेक्ट हो रहा है, तो ये वाला जो सॉसर का वाटर है ये फास्ट इवेपोरेट होगा. अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर भी हॉट था, गर्मी थी यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ़ैन तो नहीं चलाए थे, हॉट था. बट सिर्फ हॉट ही काफ़ी नहीं है, इसको वैसा टेम्परेचर चाहिए क्योंकि सन के डायरेक्ट नीचे आने से इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है रादर देन दिस. ये तो हम लोगों ने सन के नीचे नहीं रखा था ना, इसको तो हम लोगों ने एक रूम में रखा हुआ था जहाँ पे एक रूम में फ़ैन चल रहा था, दूसरे वाले में नहीं चल रहा था. बट दिस सोर्सेस ऑफ वाटर अंडर द सन, ये सन की हीट के नीचे डायरेक्ट है और ये शेड में है, तो दिस वन इज़ फास्टर इवेपोरेट्स. ओके, सो इट प्रूव्स दैट वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई. यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर हो जा रहा है और ये इसकी अपेक्षा जल्दी इवेपोरेट होगा. ओके, सो third, evaporation is faster when the air is dry. So you must have noticed that clothes dry faster on a hot dry day than on cloudy day. Do you know why? On the dry day air has the least moisture. ओके, ड्राई डे जब होता है, जब गर्मी का दिन होता है, तो मॉइस्चर बहुत वहाँ पे कम होता है, नमी बहुत कम होती है, एकदम ड्राई होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो क्लॉथ्स होते हैं वो हॉट डेज में बहुत जल्दी सूख जाते हैं. इट कैन टेक इट मोर मॉइस्चर फ्रॉम द क्लॉथ्स. वो जब ड्राई होगा तो मॉइस्चर जल्दी से, जो आपके क्लॉथ में मॉइस्चर है, क्योंकि क्लॉथ गीले हैं ना, तो वहाँ से वो जल्दी उसको ड्राई कर देता है. ऑन अ क्लाउडी डे एयर हैज़ मोर मॉइस्चर. क्लाउडी मतलब जब बारिश का दिन या बादल जैसे जो दिन होते हैं उसमें, उस टाइम पे क्या होता है, एयर में बहुत मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वाटर वेपर. मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर इन इट. सो इट कैन ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स. क्योंकि वो एयर में ही मॉइस्चर है, पहले से एयर में मॉइस्चर होने की वजह से हमारे जो क्लॉथ्स सूख रहे होते हैं उसमें से वो उतना मॉइस्चर नहीं ऑब्जर्व कर पाता है, क्योंकि उसके एयर में जब क्लाउडी डे है तो खुद ही एयर में मॉइस्चर पहले से ही है, तो जिसकी वजह से हमारा जो इस तरह के क्लाउडी डेज में होते हैं क्लॉथ्स जल्दी नहीं ड्राई हो पाते हैं. ओके, फोर्थ नंबर, water evaporates faster when the exposed surface is large. Take two handkerchiefs of the same size. In this way you can take it, okay, and a fabric. Fold one handkerchief in half twice. Okay, you have to take handkerchief, two handkerchief, or you can take any fabric, पीस ऑफ क्लॉथ, छोटा सा कोई क्लॉथ ले सकते हो आप, ठीक है, 2 पीस ऑफ क्लॉथ ले सकते हैं छोटे छोटे हैंडकरचीफ के साइज के. एंड वन यू हैव टू फोल्ड, हाफ फोल्ड करना है. पुट दिस हैंडकरचीफ ऑन अ टेबल, just like you can put it on a table. Spread other handkerchief on the table like this. Don't fold it, okay, and spread it in a single, मतलब इसको कोई फोल्ड नहीं करना है, डायरेक्ट इसको इस तरह से फैला करके ही रखना है. After some time you find that handkerchief that was not folded is dry. Okay, it will dry faster rather than this handkerchief because of दिस हैंडकरचीफ फोल्डेड. ये कम तो लिया है एरिया, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, इसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये डबल है, इसको 2 बार फोल्ड किया हुआ है. सो दिस प्रूव दैट द वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द
exposed surface area is large. Here is surface area is large. It is single. यहाँ पे ये ज़्यादा जगह लिया हुआ है और इसकी वजह से ये क्या होगा, ये जल्दी ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा. So this proof that water evaporates faster when the exposed surface is large. ज़्यादा जगह होगा तो जल्दी सूख जाएगा. Okay children, so in next video we will see what is condensation, and we will do the exercises of this chapter. So thank you.